اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ پارہ نمبر 18 آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں کل کے جوابات کے اوپر۔ یہ جو کل میں نے آپ سے سوال کیا تھا اس کے بے شمار جوابات ہیں، بے شمار، اور ہر انسان کے ڈفرینٹ ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ لعب کسے کہتے ہیں۔ کل ہم نے یہ تعریف بھی پڑھ لی تھی کہ لعب ہر وہ چیز ہے جو آپ کے وقت کا بہت بڑا حصہ لے جائے، آپ کا مال لے جائے، آپ کو مشغول رکھے، آپ بہت بزی ہوں لیکن ایٹ دی اینڈ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو چیزیں ہیں اس میں سے جو ٹاپ آف دا لسٹ ہیں یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ سوشل میڈیا ہے، اس میں اپنی آئی ڈی، دوسروں کی آئی ڈی چیک کرنا، گروپس ہمارے ڈفرینٹ جن کو ہم نے فالو کیا ہوا ہے، ہمارا انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ ہے، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، جو پیجز ہم نے لائک کیے ہوئے ہیں اوبویسلی۔ پھر اس کے بعد شاپنگ، کبھی واقعی شاپنگ، کبھی ونڈو شاپنگ، کبھی آن لائن شاپنگ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کوکنگ، ایک ریسیپی، دو ریسیپیز، مشکل ریسیپیز۔ اس کے بعد آ جاتا ہے گھر کی سجاوٹ، یعنی گھر میں اتنے ڈیکوریشن پیسز ہوں کہ مجھے ان کو صاف کرنے میں ہی پورا دن لگ جائے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے چیٹنگ اور گوسپس جو ہمیں پسند آتی ہے، ہم بولتے جائیں، سنتے جائیں۔ اس کے بعد ہے نیند جو بہت زیادہ آتی ہے۔ پھر ہے کپڑوں کی ڈیزائننگ، پہلے پرنٹ ہو، پھر لیسز ہوں، پھر اور ایسیسریز اس کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد ہے موبائل، یعنی موبائل میں ایپس ہوں، گیمز ہوں، بہت ساری چیزیں اس موبائل کے اندر موجود ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں یہ اٹ سیلف غلط تو نہیں ہے، یہ ساری استعمال کرنا ہماری ضرورت بھی ہے، ہمیں کرنی بھی ہوتی ہیں۔ کچھ تو ایسی چیزیں جو بیسک نیڈس ہیں، اس میں کھانا ہے، اس میں کپڑا ہے، اس میں چیزیں خریدنی بھی ہوتی ہیں، اس میں آرام کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو جو بیسک اصول ہے نا تمام چیزوں کا، ہر چیز ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ اس کو کس لیے کر رہے ہیں۔ ایک ہی کام جو کہ آپ ایک نیت سے کر رہے ہوں تو وہ گناہ بن سکتا ہے، اور دوسری نیت سے کر رہے ہوں تو وہ ثواب بن جاتا ہے۔ میں نے کہیں یہ جملہ پڑھا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، کہ اگر گھر تعمیر کرتے ہوئے کھڑکی بنائی جائے تو ہوا تو آئے گی، لیکن اگر نیت یہ رکھ لی جائے کہ اذان کی آواز آئے گی تو اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ سارے کاموں کے دوران آپ کی نیت کیا ہے؟ اس وقت بھی تو آپ موبائل ہی استعمال کر رہے ہیں نا جس میں آپ یہ آڈیو سن رہے ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کا آپ یوز کیا ہے، آپ ان کو کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر آپ اعتدال پر رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند نہیں ہے کہ آپ کو رنگ پسند ہے، زینت پسند ہے، آپ کپڑے کس طرح پہننا چاہتے ہیں، آپ کو اچھا کھانا پسند ہے، چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ڈالی ہیں ہمارے اندر۔ لیکن ان ساری چیزوں میں جب بیلنس آؤٹ ہوتا ہے، خرابی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ اسلام کے اندر نا کوئی ٹائم کلر نہیں ہوتا، یہ جو ایک ہمارے اصطلاح ہو گئی ہے نا کہ ہمیں بیسک ٹائم کلرز کوئی بتا دے، اسلام ٹائم کل کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ ٹائم بہت پریشیس ہے، تو اس لیے کوئی بھی چیز جو میرا ٹائم کل کر رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پارہ نمبر 18۔ یہ پارہ انتہائی اہم ہے، اور شروع میں ہم تھوڑا سا جلدی چلتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ایک بہت اہم صورت شروع ہونے والی ہے۔ پہلے ربع کے اندر سورہ مومنون ہے جو کہ ایک مکی صورت ہے، اور اس کی ابتدا ہی ایسے ہوتی ہے، یقیناً فلاح پائی اہل ایمان نے۔ یہ جو لفظ فلاح ہے نا، یہ ہے کامیابی، اچیومنٹ۔ اور دنیا میں انسان بہت ساری کامیابیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، ڈگری ہو، شادی ہو، گھر بنا لیا، بہت ساری سیونگ کر لی، بہت سارے اپنے ہم نے کرائٹیریاز طے کیے ہوئے ہوتے ہیں، مائل سٹونز بنائے ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس ساری چیزوں کا ذکر ہی نہیں کر رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نماز میں خشوع اختیار کیا، اپنی نمازوں کی حفاظت کی، لغویات سے دور رہے، زکوٰۃ کے طریقے پہ عامل رہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہے، اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھا۔ کامیابی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں لگا رہے۔ پھر فرمایا کہ تخلیق کا کام تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں گنوائی ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں اور وہ ہم نے نہیں بنائی، انسان سے لے کے درخت سے لے کے بادل سے لے کے آسمان سے لے کے زمین تک۔ پھر فرمایا قصہ نوح کا پورا ذکر کیا، دوبارہ سے دہرایا، اور فرمایا کہ آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں، اللہ تو آزماتا ہے، اور یہ کئی بار آ چکا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے سامنے وہ مختلف حالات سے آزماتا رہا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیوں نہیں آزمائے گا؟ پھر فرمایا کہ ہر قوم اپنی مہلت کا وقت مکمل کرتی ہے، کامیابی یہ ہے کہ انسان نیکی کے راستے پر ہو، جو ہم نے پہلے بات کی کہ یہ مال زیادہ ہونا، اولاد زیادہ ہونا، گھر کا بہت اچھا بن جانا، یہ چیزیں کامیابی نہیں ہے۔ یہ چیزیں طے نہیں کرتی کہ اللہ کے نزدیک کون کامیاب اور کون ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ تو کامیاب اس کو کہتا ہے جو اللہ سے قریب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی جس انسان کے اوپر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہم شاید یہ نہیں کر پائیں گے، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اگر ہم دین پہ چلیں گے میری ہمت نہیں ہے، میری طاقت نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔
اللہ ताला आपसे जो मुतालबा करता है वो आपकी ताकत के हिसाब से ही करता है। हम शायद अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। और फिर फरमाया कि हम तो इनका अपना ही जिक्र इनके पास लाए हैं। यानी कितनी मजे की बात है ना कि अल्लाह ताला कह रहा है कि इसमें तो तुम्हारा ही अपना फायदा है, तुम्हारी बात हो रही है, तुम्हारी फलाह है, तुम्हें नुकसान से बचाना है, सब कुछ तुम्हारे लिए है, लेकिन ये इससे भी मुंह मोड़ जाते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरे रुबा के अब ऊपर आते हैं। फरमाया कि अगर हम इनकी तकलीफ दूर कर दें, जिस हालत में ये अभी हैं, जो अल्लाह के सामने दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें इस वबा से निकालिए, इस हालात से निकालिए, अगर हम ये दूर कर देंगे, ये फिर किस सरकशी की तरफ चले जाएंगे। मैं कल ये सोच रही थी कि अभी जो हमें अल्लाह ताला से ताल्लुक़ महसूस हो रहा है, हम घर के अंदर हैं, हम इतना वक्त दे रहे हैं कि रमज़ान चला जाएगा तो हम वापस उसी रूटीन पे चले जाएंगे कि फिर बस हम अगले रमज़ान का इंतज़ार करेंगे नेकी पे चलने के लिए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला के सारे एहसानात, अल्लाह ताला की कुदरत एक एक करके गिनवाई गई है कि तुम्हें समाअत दी, तुम्हें दिल दिया, ज़िंदगी दी, तुम्हें मौत भी देता है, फिर तुम्हें इक़्तिदार भी देता है, सारी चीज़ें जिक्र की हैं। और फिर फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुराई को बेहतरीन तरीके से दफ़ा करें। फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, लेकिन इससे हम सब के लिए उसूल मिलता है कि अगर कोई भी बुराई करे, आपको इख्तियार है, कोई आपके साथ बुरा करता है तो आप उसको रोक सकते हैं, आप जवाबन उसको मना कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला चाहता है कि रिटर्न बेहतर हो। अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है कि दो लोग आमने सामने एक बुराई करे और दूसरा भी बुराई करे। अल्लाह ताला को ये पसंद है कि एक आदमी बुराई करे तो सामने वाला उस बुराई को वहाँ रोक ले, उसको बढ़ने ना दे। और उसके बाद फिर ये फरमाया कि क़यामत के दिन सब लोगों को हसरत होगी, एक मौका, एक दफ़ा, थोड़े दिन के लिए वापस भेज दें, थोड़ा सा वक्त मिल जाए, बस अब समझ आ गई है। लेकिन अल्लाह ताला कहेगा कि नहीं, अब कोई वक्त तुम्हें वापस मिलने वाला नहीं है। यहाँ से एक इंतहाई अहम मौजू शुरू हो रहा है और वो है सूरह नूर। सूरह नूर का यहाँ से आगाज़ हो रहा है और ये वो सूरत है जो उन हालात में नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत आयशा के ऊपर किरदार पर इल्ज़ाम लगाया गया। काफ़िले से वो पीछे रह गई थी, बाद में वो वहाँ पहुँची और वो एक मौका मिला मुनाफिकीन को, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हज़रत आयशा के किरदार के ऊपर। और ये बात हमें तारीख़ में बहुत जगह मिलती है कि अगर कोई दीन की तरफ बुलाता है तो सबसे पहले लोग उसके किरदार को टारगेट करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा, आपकी अहलिया के ऊपर लगा और उसके बाद आप बहुत परेशान भी रहे। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो बात ज़बानों से चलती चलती कई लोगों तक चली गई और फिर उसके बाद एक सरगोशियों का सिलसिला रहा। फिर उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा के हक़ में वही नाजिल की और उनको बरी करार दिया। इस सारे मामले के ऊपर जो तबसरा करने के लिए नाजिल हुई है वो सूरह नूर है। इस सूरत के अंदर रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अच्छा जिसने ये इल्ज़ाम लगाया वो दोज़ख में चलेगा, जो ये कुछ बात नहीं हो रही। इसलिए कि आपके हाथ में वो है जो आप कर सकते हैं, कोई और आपके हाथ में नहीं है। अगर आपने कभी डिप्रेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस ली होंगी तो उसके बेसिक उसूलों में से एक चीज़ ये है कि आप सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचें जिसको आप बदल सकते हैं। जो चीज़ आप नहीं बदल सकते ना आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं और ना वो आपके हाथ में है। तो इसी तरह अल्लाह ताला जो सूरह नूर में तबसरा करते हैं ना, एक बड़े बादशाह का तबसरा नज़र आता है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर किसी ने कुछ कह दिया, बल्कि वो उसके बाद तबसरा करते हैं और उसको 3 हिस्सों में तकसीम होती है सूरह नूर। पहला आता है कि अच्छा अगर ये प्रॉब्लम्स आते हैं इस तरह के, कानून बनने चाहिए, सही सज़ा मिलनी चाहिए, गलत आदमी की पकड़ होनी चाहिए, कानूनी निज़ाम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि ऐसी नौबत ना आए। दूसरी बात ये आती है कि क्या सीखा इस वाक़े से, क्या तुम्हें सबक सीखना चाहिए, कौन सी चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए। और ये भी ख़िताब हो रहा है मुसलमानों से, उनसे ख़िताब नहीं हो रहा जो मुनाफिक हैं या जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, जो उससे शर फैला रहे थे। अल्लाह ताला उनसे मुखातिब नहीं हो रहा, अल्लाह ताला मुसलमानों से मुखातिब हो रहा है। जैसे हमारा जो एक ख़ास जुमला है ना कि तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुम्हें तो ये नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर कोई कुछ भी करता रहे, तुम्हारे रिएक्शन ने चीज़ों को बढ़ाया, तुम वहाँ रोक सकते थे, तुम्हें क्या करना चाहिए था। और फिर तीसरे हिस्से में जब आप आगे पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने माशरती अहकामात दिए हैं कि आपके माशरे के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा जाए। तो एक एक करके हम उसको लेके चलेंगे। अब हम इन तीनों चीज़ों को अलग अलग लेके चलते हैं। सूरह नूर के अंदर जो पहली चीज़ शुरू होती है वो इस बात से होती है कि ये जो सूरत हमने नाजिल की है ये हमने फ़र्ज़ की है, ये हमने तुम्हारे लिए ऑप्शनल नहीं रखा, ना ये हमने तुमसे सिफारिश की है कि तुम मान सकते हो तो मान लो, बल्कि जैसे अल्लाह ताला ने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात फ़र्ज़ किए हैं, ऐसे ही ये सूरत और इसमें आने वाले अहकामात फ़र्ज़ किए गए। दूसरी बात ये कि अगर कोई ये माशरे के अंदर ज़िना परवरिश पा रहा हो और अगर कहीं ये साबित हो जाए वाक़तन, तो फिर जो करने का काम ये है कि अलल ऐलान सज़ा दी जाए। ये जो हम परेशान होते हैं ना कि माशरे के अंदर छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात या औरत का महफूज ना होना, इसके ऊपर अगर एक फ़र्द को सज़ा दे दी जाती, एक शख्स को फांसी लगा के चौक पे लटका दिया जाता
उसके आइंदा के लिए रास्ता रुक नहीं जाता। तो अल्लाह ताला ने भी ऐसी चीज़ों को अलल ऐलान कहा है कि ये सबके सामने हो ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें। दूसरी बात ये कि इस तरह के जितने भी जराइम हैं, माशरती जो जराइम हैं, इसमें हम किसी को उसकी पर्सनल चॉइस का मार्जिन नहीं दे सकते, क्योंकि जब आप इस्लाम के अंदर आते हैं तो सबसे पहली चीज़ ही ये करते हैं कि अपनी पसंद अपनी मर्ज़ी उठा के पीछे रख देते हैं और अल्लाह की पसंद और अल्लाह की मर्ज़ी का इकरार कर लेते हैं। तो अगर आपने अल्लाह ताला से कमिटमेंट कर ली है तो उसके बाद फिर आप ये नहीं कर सकते कि मैं जो गुनाह करना चाहूँ या माशरे में जो हो रहा है उसको पर्सनल चॉइसेस के ऊपर छोड़ दिया जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप जब जिस दीन में शामिल हुए हैं आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने हैं। आप किसी इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन लेते हैं तो आपको कुछ ना भी पसंद हो, आपको कुछ ना भी समझ आ रहा हो, आपको पता होता है कि आपको उसको फॉलो करना है, क्योंकि एडमिशन आपने लिया है। तो इसी तरह जब आप इस्लाम के दायरे के अंदर आते हैं उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा कोई गुनाह किया गया और रजामंदी से किया गया तो उसको जायज़ करार दे दिया जाए। ये मुमकिन नहीं है। बाउंड्रीज वही हैं जो कुरान देता है और उसी को फॉलो करना होगा। उसके बाद फिर ये फरमाया कि इतना आसान नहीं है कि तोहमत लगा दी जाए किसी के ऊपर। आजकल तो बहुत आसान है ना, आपने बस एक पोस्ट करनी है और एक क्लिक करना है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी पे तोहमत लगाता है और वो गलत साबित होता है तो उसको भी शदीद सज़ा दी जाएगी, ताकि ये वाला ट्रेंड भी ख़त्म हो कि जिसका जो दिल चाहे वो किसी के बारे में कुछ भी कहता फिरे। उसके बाद फिर मुसलमानों की तरफ रुख करने से पहले एक कानून और आया है, और वो कानून ये है कि अगर ये मामला मियाँ बीवी के दरमियान हो जाए, दूसरी चीज़ों में तो ये हो सकता है ना कि मामला किसी के बारे में सॉल्व नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा, चीज़ों के बारे में डाउट है तो शायद छोड़ा जा सकता हो। लेकिन मियाँ और बीवी के दरमियान ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक पूरी फैमिली, एक पूरा ख़ानदान है जो उन्होंने लेकर चलना होता है और इसके असरात नस्लों तक जाते हैं। तो अगर दोनों मियाँ बीवी के दरमियान ये बात हो कि किसी एक को ये यकीन हो कि उसके साथ उसका शौहर या उसकी बीवी मुखलिस नहीं है, तो वो अदालत में जाएंगे, कसम खाएंगे, इकरार करेंगे। ये मर्द भी लेके जा सकता है अदालत में और औरत भी लेके जा सकती है। और उसके बाद दोनों कस्में खाएंगे और आखिरी कसम ये खाई जाएगी कि अगर मैं झूठा या अगर मैं झूठी हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। और उसके बाद जब वो ये कस्में खा चुकेंगे और ये महसूस हो चुका होगा कि अब इन दोनों के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तो फिर अदालत का ये काम है कि वो दोनों के दरमियान तलाक करवाएगी, अलहदगी करवाएगी। और ये तीनों चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी, ये वो काम हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे होने हैं। लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पर्सनल लेवल पर भी बनती है ना, हम सब की भी तो बनती है ना, कि अगर हम कोई ऐसी बात देखें सुने तो हमें क्या करना चाहिए। पहले तो ये फरमाया कि वाक़या इफ़्क को, इस इल्ज़ाम लगाने का जो वाक़या था हज़रत आयशा के ऊपर, इसको तुम शर नहीं खैर समझो। बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं जिसमें दोनों पहलू होते हैं। अल्लाह ताला शर से खैर और खैर से शर निकालता है, और हम बहुत बाद में जाके रियलाइज़ करते हैं। जैसे हमारे अभी के हालात हैं, मुश्किल में तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इससे बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी आई हैं। हमने अपना जायज़ा लिया है, अपने ऊपर गौर किया है, कहाँ वक्त लग रहा था, पैसा कहाँ जा रहा था, हमें अपनी फैमिलीज़ दोबारा नज़र आना शुरू हो गई हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ टाइम गुजार रहे हैं, हम अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं बहुत ही मसरूफ़ ज़िंदगी के बाद। तो हर चीज़ के अंदर दोनों पहलू होते हैं। इस वाक़े के अंदर से भी खैर जो निकला है वो सूरह नूर है, कि अल्लाह ताला ने वो अहकामात सारे नाजिल किए, फिर लोग खुले, फिर लोगों के आने वाले मसाइल का लोगों को अंदाज़ा हुआ, अल्लाह ताला ने रहनुमाई की। तो हर चीज़ में सिर्फ शर ज़रूरी नहीं है, उसका कोई खैर का पहलू भी हो सकता है। दूसरी बात यह कि जिसने इसमें जितना हिस्सा लिया उतना ही उसने गुनाह समेटा। वाक़यात तो आता है गुजर जाता है, ये वाक़यात माशरे के अंदर भी होते हैं, ये वाक़यात ख़ानदानों के अंदर भी होते हैं, घरों के अंदर भी होते हैं, कि किसी भी बात को इतना आसान ना समझा जाए कि मैंने कहीं से सुना और किसी से कह दिया, मैंने कुछ अंदाज़ा लगाया और कोई बात फैला दी, बल्कि जिसने जितना हिस्सा लिया किसी भी तरह, तो वो इसका जो है वो गुनाह समेटेगा। उसके बाद ये, तुम लोगों ने नेक गुमान क्यों नहीं किया? जो पहला तुम लोगों के दिल में ख्याल आना चाहिए था वो ये था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और पहले तुम लोगों को जो अल्लाह ताला ने फरमाया भी है ना, आगे हम पढ़ेंगे, अभी सूरह हुजरात भी आएगी, कि तुम लोगों का तो काम ये था कि तुम 70 दफ़ा नेक गुमान करते, तुम कहते कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, तुम लोगों ने फौरन इसको कबूल क्यों कर लिया। उसके बाद अगली चीज़ ये थी कि जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है तो वो गवाह लाए, उनके पास फिर इल्ज़ाम लगाने के लिए कोई सॉलिड वजह होनी चाहिए। तो हमारे पास ये चीज़ उल्टी होती है, हमारे पास ये होता है कि कोई जो चाहे इल्ज़ाम लगा दे और उसके बाद अपने आप को डिफेंड करना उस आदमी का काम है कि वो बताए कि वो वाकई उसने ऐसा किया है या नहीं किया है ना। तो उसूल तो ये है कि जो इल्ज़ाम लगाने वाला होगा उसके पास वजूहात होनी चाहिए, उसके पास सबूत होना चाहिए, और अगर वो गलत होगा तो फिर उसको भी सज़ा के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर एक और तंबी ये की कि तुम लोग एक ज़बान से दूसरी ज़बान लेते चले जा रहे थे, और हम जानते हैं ना ये हमारे साथ होता है
ये जो हमने पहले भी बात की थी कि जो गॉसिप्स का शौक है, ये जो शेयर लाइक करने का शौक है, ये जो हम घंटों घंटों गुफ्तगू करते हैं जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर उधर से उधर होती चली जाती है ना। तो एक तो ज़बान का पहले भी आया था कि ज़बान की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि ख़ास तौर पे जब किसी की इज्जत का मामला हो, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसमें हम अगर इजहार ख्याल ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आगे बात ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है कि हमें जो चीज़ मालूम हुई है वो सच है। ज़रूरी नहीं है कि हम झूठ ही आगे कहें, लेकिन बात सच भी अगर आगे ना कही जाए तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। बाज़ वाक़यात पता चल जाए आपको, फ़ैमिलीज़ के अंदर आपको कुछ चीज़ें पता चल गई हैं, किसी के कोई प्रॉब्लम्स हैं जो आपको पता चल गए हैं, 2 लोगों के दरमियान में कोई इश्यूज़ हैं जो हमें मालूम हो गए हैं, क्या ज़रूरी है कि डिस्कस किया जाए? क्या ज़रूरी है कि वो चीज़ मेरी ज़बान से कहीं और ज़रूर जाए? यहाँ पे अल्लाह ताला ने इसको रोका है। उसके बाद फिर हम आगे आते हैं, फिर आते हैं माशरती अहकामात। एक चीज़ हो गई जो हुकूमत ने करनी थी, एक थी जो पर्सनल लेवल पे करनी थी, एक वो है जो माशरे के अंदर चीज़ें बदलने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ें रिवाज पा जाएं ताकि जो है वो कुछ हुदूद और क़ुयूद बरकरार रहें। पहली चीज़ ये थी कि ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वो किसी की मदद किया करते थे और उसके बाद उन्होंने कसम खाई कि मैं मदद नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लगाने वालों का साथ दिया है। तो उस पर अल्लाह ताला ने आयत दी थी कि नहीं, तुम ऐसा ना करो। जो लोग किसी साहिब हैसियत हों और किसी की मदद कर रहे हों तो वो अपनी मदद जारी रखें। और सवाल ये क्या है, तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारे साथ रहमत का सलूक करे? हम चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमारी सारी चीज़ें छोड़ दे, हम जो करें माफ़ हो जाए, लेकिन लोगों के साथ हम ये मामला करने पे तैयार नहीं है। लोगों की हम छोटी से छोटी चीज़ माफ़ करने पे तैयार नहीं है। तो जो मामला, जो हदीस बताती है ना, जो ज़मीन वालों पे रहम करेगा आसमान वाला उसके ऊपर रहम करेगा, तो वही मामला हम लोगों के साथ भी करें। अगली चीज़ है कि बिला इजाज़त घरों में दाखिल होने की ममानियत। इससे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। एक तो ये मिलता है कि आप घरों के अंदर जाएं तो आप इजाज़त लें, और अगर इजाज़त ना मिले तो आप खुश दिली के साथ वापस आ जाएं। इस पे एतराज़ ना करें कि क्यों इजाज़त नहीं दी जा रही। दूसरी बात यह कि कितनी दफ़ा इसकी बहुत सारी हमें शरह में डिटेल्स मिलती हैं कि 3 दफ़ा पुकारा जाए। अब अगर आप इसको 3 दफ़ा बेल बजाने पे कर लीजिए कि 3 दफ़ा बजाई जाए, और अगर 3 दफ़ा जवाब नहीं आता तो फिर आप खुश दिली से वापस आ जाएं। दूसरी बात, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसकी जेल में आ जाती हैं। इसका मकसद ये है कि किसी भी शख्स की पर्सनल प्राइवेसी या पर्सनल स्पेस का ख्याल रखा जाए। अब इसके अंदर ये भी आता है कि आप किसी के घर झांक रहे हैं, आपके घर से किसी के घर नजर आता है तो आप झांक झांक के देख रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। इसमें वो स्टॉक करना भी आता है कि आपने किसी की फेसबुक जाके चेक किया, आपने जाके दूसरों के आईडीज पे चेक किया कि वो क्या शेयर कर रहे हैं, किसी का फोन खोला मिल गया तो जाके चेक किया, चाहे वो आपके घर वाले, आपके शौहर बीवी, आपके बच्चे ही क्यों ना हो। उसके बाद ये कि आप किसी के मैसेजेस चेक कर रहे हैं खामोशी के साथ। फिर इसमें ये भी है कि अगर आप जा रहे हैं और आप पूछा जा रहा है कि कौन, तो अपना नाम बताइए, ये ना कहिए कि मैं। फिर ये भी मिलता है कि घरों के अंदर भी एहतियात की जाए, और इसमें टेलीफोन्स भी शामिल हैं कि अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं और वो आपकी कॉल पिक नहीं कर रहा तो आप बार बार रिंग ना करें, आप इंतज़ार करें कि वो आपको कॉल बैक कर ले। तो हर एक की जो एक पर्सनल प्राइवेसी है ना, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए हिदायत है। दोनों को अलग अलग मुखातिब किया है कि अपनी नज़रें बचा के रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखें। यानी अपने किरदार का ख्याल वो खुद रखें, और अगर वो बाहर निकलते हैं और उनकी नज़र पड़ ही जाती है तो वो इस नज़र को फ़ौरन नीचे कर लें। इसमें मर्दों के लिए भी ज़ाहिर इजाज़त नहीं है कि वो किसी को भी हरास करें, किसी को भी देखें, और ख़वातीन के लिए भी इजाज़त नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मर्दों को देखें, इल्ला ये कि ज़रूरत हो, ज़रूरतन हो। उसके बाद ये कि औरतें जो हैं वो अपनी ज़ीनत ज़ाहिर ना करें, सिवाय इसके जो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाए। अपने सीनों पे अपने दुपट्टे डाल के रखें। यहाँ पे अल्लाह ताला ने, क्योंकि दोनों मर्दों और औरतों दोनों जिन्सों को अल्लाह ताला ने एक दूसरे से अट्रैक्ट किया है। अगर अल्लाह ताला ये ना करते ना तो हमारा फैमिली सिस्टम नहीं चल सकता था। दोनों एक दूसरे की ज़रूरत महसूस करते हैं, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। इस वजह से ही दोनों निकाह की ज़रूरत महसूस करते हुए ख़ानदान की बुनियाद रखते हैं। लेकिन वही चीज़ जो अल्लाह ताला ने उनके अंदर कशिश रखी है, वो जायज़ रिश्ते में होती है तो बांध के रखती है, लेकिन अगर वो किसी रिश्ते के बगैर होती है तो वो माशरे में फहाशी और बहुत सारी दूसरी गैर अखलाकी चीज़ों का सबब बन जाती है। तो उसका रास्ता रोकने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं। फिर उसके बाद वो तमाम करीबी रिश्ते महरम करार दे दिए हैं जिनसे हमें दिन रात का मिलना होता है, और उसमें कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा नहीं है कि घरों के अंदर भी पर्दा करके रहना है या कोई चीज़ बहुत मुश्किल है। जितना भी पॉसिबल करीब का दायरा हो सकता था उसको अल्लाह ताला ने मुस्तस्ना रखा। इसमें हमारे लिए आसानी भी है और इसमें हमारे लिए एहतराम भी है कि इस वजह से हमारे आसपास हमारी हुर्मत कायम होती है। यानी ख़वातीन और मर्द जो आपस में महरम होते हैं वो सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे का एहतराम करते हैं। उसके बाद निकाह की तलकीन की गई है कि किसी को भी, चाहे वो बेवा हो चाहे वो ग़ुलाम हो, निकाह के बगैर ना छोड़ा जाए।
اور یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو خواہشات انسان کے اندر رکھی ہیں اس کو پورا کرنے کا اس کو جائز راستہ دیا جائے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہو پاتا۔ ابھی ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے لیے کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ کفر کی مثال ہے کہ ایک آدمی کفر کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے وہ صحرا میں جا رہا ہو، اس کو لگ رہا ہے کہ پانی آ رہا ہے، لیکن جب وہ قریب پہنچا تو اس کو کچھ نہ ملا۔ ایسے ہی مثال ان لوگوں کی ہے جو آخرت سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہت کچھ جمع ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں۔ یا پھر ایک اور مثال ہے کہ گہرے سمندر میں ایک انسان ہے اور وہ ڈوبتا جا رہا ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو یہ مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو دنیا میں کفر میں یا اللہ سے بغاوت میں یا اللہ سے انکار میں ڈوبتے جا رہے ہیں، راستہ نہیں پا رہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا ربع آتا ہے، شروع اسی بات سے ہوتی ہے جہاں سے سورت شروع ہوئی تھی۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اگر مگر کیا کیوں کیسے، یہ ایمان لانے والوں کا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنائے گا، دین کو ان کے لیے قائم کرے گا، ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ لیکن شرط وہی ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ ایمان کے اس توقع پہ پورے اترے ہیں جو پورا قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ پھر معاشرتی احکامات آتے ہیں کہ گھروں کے اندر بھی کچھ حدود ہیں۔ گھر کے اندر بھی اگر کوئی ملازم ہے، اگر بچے ہیں، بچے ڈفرینٹ ایج گروپ کے ہیں، ٹین ایجز ہیں، تو ان بچوں کے ساتھ بھی آپ کو کچھ حدود بنانی ہے کہ اگر مخصوص اوقات ہیں تو وہ اجازت لے کر آئیں۔ بعض اوقات ایسے ہیں کہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں یا آپ اس طرح کا لباس ہے کہ جس میں بچوں کا نہ آنا بہتر ہے، یا یہ کہ آپ کو کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کی چیزیں تھوڑی پرائیویٹ ہوں، تو پھر آپ اس صورت میں جو ہے وہ کچھ لمیٹیشن ضرور بنائیں کہ کن کن اوقات میں اگر کوئی آتا ہے تو اجازت لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد بزرگ خواتین کے لیے رعایت دی ہے پردے کی کہ اگر وہ اپنی چادریں نہ لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن حیا کریں تو ان کے لیے ہی اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز یہ کہ ایک دوسرے کے گھر میں کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر مرد الگ بیٹھیں گے، خواتین الگ بیٹھیں گی، یا اسلام نے جو پردے کا ایک نظام دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ ملنا جلنا چھوڑ دیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا معاشرتی نظام متاثر ہوگا۔ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، ایک دوسرے کے گھر کھانا، خوش دلی سے ملنا، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ اگلی چیز یہ کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، اس سے یہ ہوگا کہ گھر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ تم داخل ہو رہے ہو۔ اچھا، ایک اور چیز اسی سے ریلیٹڈ ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلے یہ ہدایت کی تھی کہ بلا اجازت نہ ہو، یہاں پہ یہ ہے کہ سلام کر کے آؤ، لیکن جو پبلک پلیسز ہیں وہ اس سے مستثنا ہے نا۔ کوئی ایسی جگہ ہے، مسجد ہے، کمیونٹی ہال ہے جہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لائبریری ہے، تو اس کے بارے میں یہ ذکر نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ سورہ فرقان شروع ہو جاتی ہے جو مکی صورت ہے، اور شروع ہی ایسے ہوتی ہے کہ بہت بابرکت ہے وہ جس نے کہ فرقان نازل کیا۔ فرقان کہتے ہیں ایسی چیز جو چھانٹ دے، الگ الگ کر دے، بالکل صاف صاف کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو یہ قرآن وہ چیز ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کا ذکر کیا گیا ہے اور آخرت کی یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ باقی سورہ فرقان کا حصہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ جو سوال مجھے آج آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تو ہم نے پڑھا کہ نکاح کو رواج دو نا، اور حدیثوں میں بھی ہم نے پڑھا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ یہ بھی ہم نے پڑھا کہ جو اسباب نہ پاتا ہو اس کو اسباب فراہم کیے جائیں کہ وہ نکاح کر لے، اور معاشرے میں بغیر نکاح کے چھوڑنا پسند نہیں کیا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں نکاح ایک بہت مشکل چیز ہے؟ یعنی کس چیز نے مشکل بنا دیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج کل شادی کرنا یا نکاح کرنا بہت مشکل کام بن چکا ہے۔ جو دعا تھی وہ آج 3 دعائیں آئی تھیں، تینوں ہی سورہ مومنون میں سے تھیں۔ اس میں سے جو ایک دعا وہ ہم پڑھ کے اختتام کرتے ہیں، آپ ضرور یہ دعائیں یاد کر رہے ہوں گے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتی ہوں شیاطین کے اکسانے سے اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں شیاطین کے شر سے اور اپنے نفس کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔